Apropos the issue of the Agniveer scheme, the simple fact is that from the time it was initiated, I've had certain reservations personally about this scheme, which I have conveyed in all fora, including to the government itself. Now, why was the Agniveer scheme introduced? It was introduced for a very logical reason. What was that reason? The pay bill, the pension bill of the Indian retired people had overtaken the pay bill of the serving armed forces. 1,07,000 crores for the serving people, 1,10,000 crores plus for the retired people. Now that was unsustainable. No government in the world can continue with this kind of a situation if it has to pay for modernization, etc. So there was a need to curtail expenses, but there were discussion on how it could be done. So my suggestion is that instead of throwing the baby out with the bathwater, we had suggested that this scheme be appropriately tweaked after trials to increase the retention of people, Agniveers, from 25% to 50%. Right? That would help us get the best people to retain, and yet a large number of people would integrate well with their units and manpower levels would not come down. Second was to increase the service period from 4 years, which is highly, we feel, inadequate, to 7 years, and if that is somehow not possible, at the very least 5 years. So the minimal that you need to tweak is 5 years plus 50% retention, and then you could continue with this scheme, get the best of both the worlds. The retention of the Agniveers who go out into the national mainstream, the test will come just about 2 years down the line when the first Agniveers start retiring, as to how much they are absorbed by the state governments, how much by the paramilitary forces and by the special central police organization. That will be a big test, because we must ensure that trained people do not get caught up in the Lawrence Bishnoi gang or the Maoists or any of these people threatening India's national security. That is imperative. That is what I have to say. That has been my view from the outset. I am afraid that still remains my view. सर, राहुल गांधी ने भागलपुर रैली में घोषणा की है कि इंडी अलायंस की सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते देश में दो तरह के शहीद हो, पेंशन वाले और बिना पेंशन वाले। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम मिलिट्री इश्यूज जो हैं डिस्कशन में आ रहे हैं, नहीं तो कास्ट कूस्ट के अलावा हमारी इलेक्शन में कुछ होता कम ही है। सो ज्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, मिलिट्री इश्यूज भी डिस्कस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी में नेचुरल है। बट जहां तक अग्निवीर का सवाल है, जब से ये स्कीम आई थी, व्यक्तिगत तौर पे मेरा परामर्श रहा है कि इसमें कुछ खामियां हैं, उनको दूर करना अनिवार्य है राष्ट्र हित में। ठीक है साहब, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये स्कीम आई क्यों थी। लेट अस गो इनटू दैट फर्स्ट। ये स्कीम आई थी साहब, पेंशन का बिल था, वो आर्म्ड फोर्सेस की पे के बिल से ज्यादा हो रहा था। 1,07,000 करोड़ आप हर साल पे कर रहे हैं अपने सर्विंग सिपाहियों को, और जो पेंशन है वो 1,10,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। तो ये सस्टेनेबल नहीं था। अगर सरकार को पैसे निकालने हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए, हथियार खरीदने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था, करना पड़ना था फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। लेकिन कॉस्ट रिड्यूस करते करते ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हमको मद्देनजर रखनी होगी। इसीलिए हमने सरकार को सुझाव दिया था, जो वेटरन्स थे उस वक्त। मैंने पर्सनली राजनाथ सिंह जी से बात करी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, सबसे मैंने बात की थी उस टाइम पे, ये कहने के लिए कि इस स्कीम को थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत है। अभी जो है 75% घर चले जाएंगे अग्निवीर, 25% ही रखे जाएंगे। ये बहुत छोटा आंकड़ा है, हमको 50% को रखना चाहिए, और मुझे बताया जा रहा है कि सरकार इस पे सोच रही है। ठीक है। और दूसरा है कि जो सर्विंग
अवधि है, सर्विस की अवधि, वो अभी इनकी है केवल 4 साल। 4 साल में इंटेग्रेट होना मुश्किल है, इंटेग्रेट होना एक जवान का मुश्किल, खासकर क्रू सर्व्ड हथियारों में। टैंक में क्रू 3 या 4 का होता है, तोप में 6 से 8 का होता है ना, बीएमपी में 3 का होता है, तो वो क्रू का तालमेल बहुत जरूरी है। आप ये मुसीबत हो जाएगी अगर हर 1 साल 1.5 साल में लोग आए और जाते रहे, बदली होते रहे। ओवरऑल मैन पावर की भी थोड़ी हमको कमी है, हमको लड़ना पहाड़ों में है, तो वो भी हमको मेकअप करनी पड़ेगी। 43,000 पर साल काफी नहीं है। ये मेरा बड़ा हम्बल सुझाव है, और मुझे यकीन है कि लोग इसको इस पे सोच हो रही है, सरकार कर रही है, ट्रायल कर रहे हैं अभी, मुझे बताया गया है, और इसको ट्वीक किया जाएगा। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर की पूरी स्कीम ही कर दें, वो स्कीम कुछ रीजन से लाई गई थी, इसको डायल करना जरूरी है। मे नॉट हैव टू थ्रो एवरीथिंग आउट विद द बाथ वाटर। क्या इसकी कुछ अगर 4 साल की रहती है तो कुछ इसके ऐसे भी चीजें आ सकती है कि ये लोग आगे किसी दूसरी फोर्स को ज्वाइन करने की? हाँ, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए, सबसे जो वरी का जो सोर्स है वो ये है कि 4 साल के बाद जब इनकी पहली बैच की अवधि खत्म हो जाएगी तो कितने एब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज में, इत्यादि इत्यादि। ये देखना, पुलिस में, लोकल स्टेट पुलिस में ये देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना केवल सेंटर बट स्टेट्स भी आती हैं। और अगर क्योंकि ये सारे अगर एब्जॉर्ब ना हुए तो फिर साहब आपकी ट्रेंड मैन पावर है जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ज्वाइन कर सकती है, टेररिस्ट को ज्वाइन कर सकती है, चाहे पंजाब में, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे माओइस्ट को। ये एक खतरा है जो पैल्पेबल, रियलिस्टिक है। हमको देखना पड़ेगा कि कैसे एब्जॉर्प्शन होती है। हमारा तो सुझाव था कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लड़के रिटायर हो रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, खासकर आर्मी से, उनको सीधा टेक इन कर लिया जाए। जो हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह हैं, ये बड़ी यंग एज पे रिक्रूट हो रहे हैं, तो इतने बुढ़े भी नहीं हम दे रहे कि जो कि बहुत 4 साल की अवधि के बाद वो जा रहे हैं 17 पे, वो तो अब रिक्रूट होने शुरू हो गए, सो इससे फायदा ये होगा कि वो भी यंग रहेंगे, हमारा भी यंग प्रोफाइल मेंटेन रहेगी, और इनका मिसयूज, दुरुपयोग होने का कोई भी चांस खत्म कर दिया जाए।